Hello, today I'm going to tell you about relationship between zeros and coefficients of a polynomial. इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स जो ए होगा वो जीरो नहीं होगा। मीन्स 2x² प्लस 3 is a quadratic equation. 3 plus 2x² is also a quadratic equation. 5x² is also a quadratic equation. Means अगर हम 5 इंटू 0 कर दे, मीन्स यहाँ पे जो होगा वो x का वैल्यू होगा x² मीन्स यहाँ पे a का जो वैल्यू है a का वो यहाँ पे 0 नहीं होगा। मीन्स x² इंटू 0 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ओके, ये नहीं होगा। अगर ये हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं बनेगा। ओके ना। सो इन जनरल इफ अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम अल्फा एंड बीटा मान लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को। पी ऑफ एक्स जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, x² प्लस bx प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी are real numbers but a not equal to 0, then x minus alpha means p of x equal to x minus alpha, then p of, अगर हम जीरोस फाइंड करेंगे तो p of x क्या हो जाएगा, x minus alpha equal to 0, then x equal to alpha means x का वैल्यू अल्फा हम लिए हैं। सेकेंड, p of x equal to beta means p of x equal to x minus beta, then हम जीरोस फाइंड करना है। p of x equal to 0 means x minus beta equal to 0, then x equal to beta. Okay, so x minus alpha and x minus beta are the factor of px, means x minus alpha and x minus beta क्या है, px का क्या है, फैक्टर है। therefore ax² plus bx plus c equal to, we can write x minus alpha into x minus beta, imply that ax² plus bx plus c equal to x², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x minus alpha into x minus beta, then will come x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Okay, so here ax² plus bx plus c equal to 0, x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. We have to compare both this equation. ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ एंड कांस्टेंट टर्म्स, मींस comparing the coefficient of x² x and constant terms on both side, means ये साइड और ये साइड ये साइड और ये साइड दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। किसका कोफिशिएंट से, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। देन वी हैव a equal to 1 means x² कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1 means a equal to 1। वी हैव b equal to b means कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू minus alpha plus beta and coefficient of c means क्या, constant term, coefficient of c equal to alpha into beta, so c equal to alpha into beta, so we can write then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a, means alpha plus beta को हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मीन्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ zeros, alpha is a zeros and beta is also a zeros, so sum of zeros minus b by a and product of zeros c by a, means sum of zeros is minus b by a, coefficient of x divided by coefficient of x², product of zeros equal to constant term divided by coefficient of x². Okay, so sum of 0 equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x² and product of zeros
equal to constant term divided by coefficient of x square, means alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a. Okay, now we will solve exercise 2.2 from NCERT book. Okay, now we will solve exercise 2.2 from NCERT book. Question number 1 is here. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Means first of all we will find the zeros of the coefficient of this polynomial. Okay, and after that we will verify, we will prove constant and zeros and coefficient. मीन्स हमको वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का वेरीफाई करना है, वो होगा कि नहीं होगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिकॉज a is here 1 and b is here minus 2 and c is here minus n. x is a variable, 2 is a constant, 8 is a constant. Okay, so solve. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है, और जब भी जीरोस फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू जीरोज. बिकॉज p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. अब आप लोग 8 क्लास में और 9 क्लास में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड. बीच वाले को क्या कहेंगे? हम स्प्लिट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे. बीच वाले टर्म को क्या करेंगे? हम हटा देंगे. स्प्लिटिंग मेथड से किसी तरह इसको हटा देंगे. कैसे हटाएंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर हियर? सो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 8. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 इक्वल टू 8. मीन्स मल्टीप्लाई करने पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का कितना आया? मेरा 8 आया. मीन्स हमको मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए एनी हाउ, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा 2 आना चाहिए. तो 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 हो गया आपका. अब देखिए यहाँ पे हमको लाना है, यहाँ पे कितना है? 2, 8. तो सबसे पहले 8 देखिए, 2 4 जा 8 and 4 2 जा 8 and 2 4 minus 2 equal to 2. We can write 2. So 4 सबसे जो ग्रेटर होता है, 2 इंटू 4 नहीं लेंगे हम. हमेशा जो ग्रेटर होता है उसको फर्स्ट लेंगे हम. जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट में लेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे? हम बाद में लेंगे. तो फर्स्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 4. तो 4 को पहले लेंगे और 2 को क्या करेंगे? हम बाद में. तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. यहाँ पे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है. प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट टर्म आपका सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या लिए थे? 4 2 जा 8 एंड वेरिएबल इज हियर एक्स. सो 4x वी कैन राइट 4x एंड माइनस माइनस प्लस. ओके, एंड 4 2 जा मीन्स 2x because variable is here 8 and minus 8 equal to 0. मीन्स आपका जो लास्ट का टर्म साइन है और जो फर्स्ट का टर्म साइन और टर्म दोनों क्या होगा? वो सेम होगा, वो कोई चेंज नहीं करेगा. स्प्लिट किसको करेंगे हम? बीच वाले टर्म को केवल स्प्लिट किए. क्यों? क्योंकि इसको हटाना हमको और फैक्टराइज करना है. तो माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 2x एंड imply that we will take common x square minus 2x. ये दोनों में से हम क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है. तो क्या करेंगे? हम x को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. x माइनस 4. यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? 2. तो we take common 2 and x 2 4 जा 8, x minus 4 equal to 0. So we have to take common x minus 4 is here also, and x minus 4 is also here. So x minus 4 कॉमन ले लीजिए आप. x minus 4 what is remaining here? x plus 2 equal to 0. Then
imply that x minus 4 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. दोनों को क्या करेंगे हम सेपरेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे इक्वल टू 0. Then what is the value of x? X equal to 4 and x equal to minus 2. Therefore 4 minus 2 is the zeros of the polynomial. Okay, now we have to verify. Okay, so we have two zeros, 4 minus 2. 4 minus 2 मेरा क्या आ गया, जीरोज आ गया. मीन्स अल्फा इक्वल टू, मीन्स अल्फा आ गया मेरा, जीरोज आ गया, अल्फा एंड बीटा. 2 zeros, 4 and minus 2. So now relationship between zeros and coefficient. So we know that sum of zeros we know that minus coefficient of x divided by coefficient of x square. And we know that alpha plus beta. What is alpha here? 4 is alpha and beta is here. What is beta is here? Minus 2. So alpha plus beta minus b by a. Minus b by means ax square plus bx plus c. इससे कंपेयर करेंगे हम तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी बाई ए. ओके, एंड इक्वेशन आप मेरे पास क्या था, इक्वेशन मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0. ये मेरे पास इक्वेशन था. सो व्हाट इज ए हियर, 1 इज ए. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 8 था. हाँ, तो a is here 1 and b is here minus 2 and c is here minus 8. So alpha plus beta, what is alpha here? 4 and beta minus 2 equal to minus b by a. b equal to a equal to 1, b equal to minus 2 and c equal to minus 8 and b equal to minus 2. So minus b minus 2 or a equal to 1. So 4 minus 2 plus minus minus and minus minus plus 2. So 4 minus 2 equal to 2 equal to 2. Now we know that product of zeros, we know that constant term divided by coefficient of x square and constant term product of zeros. What is zeros here? Alpha and beta, and constant term means c by a. So alpha is here 4 and beta is here minus 2, and what is c here? Minus 8, and what is a here? 1. So minus 4 to 8 minus 8 equal to minus 8. 8 and cancel, so 8 equal to 8. यहाँ पे भी आपका इक्वल हो गया, यहाँ पे भी इक्वल हो गया. मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 2 by 2 इक्वल टू 2, एंड अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट बाय मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यहाँ पे इक्वल टू हुआ. देयरफॉर हेंस वेरीफाइड. ओके.